Hello and welcome back to the channel. So today again I am here with a new problem in LeetCode and the problem number is 4. So this is a hard problem and also a very famous problem. So the problem is to find the median of two sorted arrays. Okay. So you have given array num1 and array num2 जिनका size n और n है. Okay. You have to find the median for these two sorted arrays. So let's move on to our. So before starting the problem, those who have not subscribed the channel, they can subscribe it because we have started the series from the beginning. So if you are a beginner, you can subscribe the channel and get the latest updates from the channel. तो शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो बिफोर मूविंग टू द प्रॉब्लम, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. ओके, सो हमें मीडियन निकालना है. सो मीडियन क्या होता है? सपोज यू हैव ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं. So if you have odd elements, then your middle element is median. Okay, simple. और अगर आपके पास even elements हैं, then sum of two middle elements का जो average है वो median होगा. Means sum of middle two elements divided by 2 is your median. Okay, so with respect to this theory, nums1 का median हो जाएगा 3 और nums2 का median हो जाएगा 9 plus 10 divided by 2, which is roughly 9.5. Okay, so I hope it is clear कि median क्या होता है. अब हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि we have to find the median of these sorted arrays. So उसके लिए हमें क्या करना होगा? If we talk about brute force approach, so the easiest way is कि हम इन दोनों को merge करें. Okay, so merge nums1 and nums2. Okay, so you will get 1 3 7 8 9 10 11. So you have 7 elements which is odd, right? And the median will be the middle element, which is 8, right? But the problem with this is the complexity will be big of, suppose if nums1 is of n length and nums2 is of n length, so the complexity will be m plus n. Same will be the space complexity big of n plus n. Okay, which is not a good approach. So what will be the most optimized approach to solve this problem? Now let us see that. So now let us understand the optimal approach. Okay, so as you can see, we have array 1 having 4 elements and array 2 having 4 elements. Okay, so the total size is 8, which is even. Okay, so if we talk about median for this two sorted arrays, if we combine this, okay, a1 plus a2, so we have something like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so median will be, I am denoting median with n. Okay, so it will be the sum of these two middle values, 4 plus 5 divided by 2, which is 9 by 2, and this is around 4.5. Okay, so you can say median will be something around here, so I am denoting it m. Now can you see this green line and this blue line? The condition for median is that all the elements before the median. So if we say this is your left denoting with L and this is your right denoting with R, okay, then L is always less than or equal to R, right? If we see along the median, then these numbers are less than median and these numbers are greater than the median value. So from this we are confirmed that if we have a sorted series of numbers, right, then there is going to be only one median. Okay, and left hand side values will be less than or equal to right hand side values.
So why I'm saying equal to? Because this 5 can be 4, right? It can be 4. In that case, we will have the max left which is 4 here, right? अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो मैक्सिमम 4 है यहाँ पे, एंड min of right, if it is instead of 5, if we have 4 here, okay, then 4 is equal to 4, so that's why we say left less than equal to r, okay, if we have 4 on both side between the median, okay, alright. So यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि लेफ्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा राइट से छोटी होंगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है लेफ्ट की वो लेस देन या इक्वल टू जो राइट साइड की मिनिमम वैल्यू है विच इज़ 5 हियर. इफ इट इज़ 5 तो लेस देन होगा, और अगर 4 हम लेते हैं कंसिडर करते हैं तो इक्वल होगा, ओके, क्योंकि सीरीज में तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, राइट. सो नाउ आई हैव शोन दिस कंबाइंड एरे, जिससे कि आपको ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ओके. देन पार्टीशन का भी थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि एक ही वैलिड पार्टीशन होगा, राइट, और वहीं से हमको अपना मीडियन मिलेगा. सो दिस वॉज ऑल हाइपोथेटिकल, ओके, क्योंकि हमें एरे को कंबाइन नहीं करना है, ऑलराइट. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू डू 2 थिंग्स. नंबर 1, फाइंड partition, okay, and number 2, do binary search on partition, okay. So this is the most important thing to understand कि binary search जो है ना, we are doing this on partition, okay. हम array पे जब बोलते हैं कि we are doing binary search on array, so actually we are doing binary search on partition finding. हम कोई वैल्यू नहीं ढूंढ रहे. सो हमारी अप्रोच क्या है, हम जो स्मॉलेस्ट एरे होगा उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, ओके. बट सपोज अगर हम A1 पे बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, ओके, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट BS, सो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट. अब इसमें हम कोई वैल्यू तो ढूंढ नहीं रहे हैं. बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च होता है कोई हमारी टारगेट वैल्यू होती है, ओके. टारगेट वैल्यू सपोज 3 है, तो हम बाइनरी सर्च लगाते हैं और 3 को फाइंड करते हैं. बट हम यहाँ पे वैल्यू कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम वैल्यू नहीं ढूंढ रहे हैं, हम पार्टीशन ढूंढ रहे हैं, राइट. एंड उसके लिए हम लोग बाइनरी सर्च लगा रहे हैं. सो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हम एरे के ऊपर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं. नो, वी आर डूइंग बाइनरी सर्च ऑन पार्टीशंस, ओके. अब पार्टीशन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, ऑलराइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट पार्टीशन, ओके. सो सपोज आई एम टेकिंग एरे A1 equals 1, 3, 5 and 6, okay. So you can see they have index 0, 1, 2, 3, right. हमारी जो arrays में values होती हैं उनकी index होती है, so 0 से 3. So when we talk about partition, we are saying something like this. If I draw a line like this, it means that this is a partition, okay. So if I denote partition with P, then this is your P0, okay, means this is your 0 index partition, okay. Same, if I draw line here, it means this is your 1 index partition, okay. If I draw line here, so it means this is your 2nd index partition. If I draw line here, it means this is your 3rd index partition, okay. And if I draw line here, so it means this is your 4th index partition, okay. So total partition 5 हुए. Now see what will be the values for these partitions. So if I say P0 is the partition, then अगर ये partition है तो ये इसकी left side होगी. So left will have 0 elements, okay, and right will have 1, 3, 5, 6, okay, like this. When we have P1 partition, then left has 1 and right has 3, 5 and 6 elements, okay. When we have P2 partition, then left has 1, 3 and right has 5, 6 elements. Then when we do partition 3, then left has 1, 3, 5 and right has only
6. And when we need partition P4, then left has 1, 3, 5 and 6, and right has empty elements. So 0 means you can, instead of 0 you can show empty like this. Okay, so इसी partition पे हमें binary search apply करना है. Alright guys, so now we are going to do the partition. Okay, so suppose we denote size of array A1 as x and size of array A2 as y. Okay, x is 4 and y is also 4. So if I say to find the half of the combined size and denote it with half, okay, so it will be size of x plus size of y plus 1 divided by 2. Okay, why we add plus 1? Because it works for even as well as odd. Okay, plus 1 is for odd element, because when there are odd elements, okay, so median क्या होता है, वो मिडिल का नंबर होता है एंड लेफ्ट साइड में हम इसको इंक्लूड करते हैं. ओके, सो इट विल बी 4 plus 4 plus 1 9/2, which will be 4.5, or roughly you can say 4. Okay, now since we have to find the partition, so suppose if I partition here, okay, then we know that total length is 8. So if we hypothetically assume that we have a combined array, okay, then on left side, if I say this is left, there will be 4 elements, right? And if I say this is right, then on right side there will be 4 elements, and your median is somewhere here. Okay, so if I denote A1 partition as partition x, okay, and array A2 partition as partition y, okay, so इन दोनों का जो सम है वो 4 के इक्वल होना चाहिए. दिस शुड बी इक्वल टू 4, राइट? क्योंकि मुझे पार्टीशन ऐसे करना है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो. अगर ऑड है तो लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट जाना होगा. सो अगर मैंने A1 में पार्टीशन यहाँ पे किया है 1 और 3 के बीच में, तो A2 में पार्टीशन मुझे यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है विच इज 1. सो बाकी के 3 एलिमेंट मुझे A2 से लेने होंगे, 2, 4 एंड 7. सो ये टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए लेफ्ट साइड के, राइट? सो ये तो मैं आपको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पार्टीशन समझ में आए कि कैसे करना है, ठीक है? बट व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द कोड, हमें पार्टीशन एक्स के लिए लॉजिक लिखना होगा, एंड दैट लॉजिक इज टू अप्लाई द बाइनरी सर्च. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन फाइंडिंग partition x. Okay, so let's apply binary search for partition x. So for that we take two variables, low which is 0 and high which is 4 here. So low is your start index of the binary search, which is 0. Okay, and high is the end index of your binary search. So this is your size of array which is A1. Okay, so binary search में हम क्या करते हैं, we find the middle value. Okay, so for that we do low plus high by 2, which will be 4/2 equals 2. Okay, so मुझे यहाँ से partition x की वैल्यू मिल गई, so I'm writing it in short px. Okay, so जब मुझे px मिल गया, अब मेरे पास ये फॉर्मूला है कि partition x plus partition y is equal to 4. So if I put px, then you will get py also, right? So py is 2, means partition x मुझे 2 वैल्यू की बात करना है, और उसी तरह partition y मुझे 2 वैल्यू के बात करना है. So if I write array A1 equal 1, 3, 5, 6, okay, and A2 equal 2, 4, 7, 8. So let's do the partition. So A1 में हो जाएगा यहाँ पर, और A2 में हो जाएगा यहाँ पर. So this value and this value ये लेफ्ट साइड में हो जाएंगी, and 5, 6 and 7, 8 will be on the right side. Okay, so we will get 1, 2, 3, 4, and on the right we will get
5, 6, 7, 8. Okay, to get the valid partition, we have a condition also. So what is that condition? Max of left of x, okay, this should be less than equal to min of right of y, okay, and max of left of y less than equal to min of right of x, ओके। सो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वैलिड पार्टीशन है। तो हम चेक करें अगर, सो लेट अस टेक सम कलर, डिफरेंट ब्लू कलर, ओके। सो यू कैन सी 3, actually some dark color, 3 is less than 7 and 4 is less than 5, right? So we can say क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो अगर 3 इधर वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटा है और 4 अगर राइट वैल्यू से छोटा है, देन इट इज़ ए वैलिड पार्टीशन। और जो हमारा A1 है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट, और A2 भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अगर 3 7 से छोटा अगर हमें मिल जाता है या कोई और वैल्यू मिल जाती है जो 7 से छोटी है, तो उसके बाद तो पीछे की वैल्यू वो तो ऑलरेडी छोटी होंगी। सेम कंडीशन यहाँ हो रही है, अगर 5 से छोटा मिल जाएगा A2 में तो उसके पीछे की वैल्यू तो छोटी ही होंगी। सो अगर इस तरह की वैलिड कंडीशन फुलफिल होती है देन इट इज़ अ वैलिड पार्टी, ओके। सो मीडियम क्या हो जाएगा फिर? सो इफ वी हैव ऑड एलिमेंट्स तब तो मीडियन हो जाएगा मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ x कॉमा, आई एम राइटिंग इट बिलो, मैक्स ऑफ राइट ऑफ y, ओके। अगर हमारे पास ऑड एलिमेंट्स हैं और अगर इवन है, सो आई एम राइटिंग इट हियर, इवन एलिमेंट्स हैं जैसे कि इन दिस केस, तब मीडियन क्या होगा? इट विल बी एवरेज ऑफ मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ x कॉमा मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ y, ओके। सो इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो, सो लेट मी यूज सम अदर कलर फॉर ब्रैकेट, ओके, कॉमा min of right of x कॉमा min of right of y, ओके। सो इस पूरे का एवरेज, तो इसको समझ लेते हैं क्योंकि ऑड है, सॉरी इवन है हमारे। सो एवरेज मीन्स हमारे जो भी एलिमेंट होंगे बाई 2, ओके। सो मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ x मीन्स दिस 3 और मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ y क्या है? 4। तो 3 और 4 में से मैक्सिमम क्या है? 4 बड़ा है, सो 4 विल बी फ्रॉम हियर। देन मीन ऑफ राइट ऑफ x क्या है? 5 एंड मीन ऑफ राइट ऑफ y क्या है? 7 है। तो 5 और 7 में से छोटा क्या है? 5, राइट। सो दिस इज 9/2 विच इज 4.5। तो ये हमारा मीडियन हो गया। सो दिस वॉज द ड्राई रन फॉर दिस एरे, ओके, एंड वी गॉट द आउटपुट ऑल्सो, बट देयर मे बी अ कंडीशन। यहाँ पे तो हमें एक बार में ही आंसर मिल गया, राइट, बट देयर मे बी कंडीशंस जब आपके जो पार्टीशंस हम जो कर रहे हैं वो वैलिड ना हो, राइट। सो फॉर दैट वी हैव टू मूव आवर हाई एंड low index accordingly. So let's see that also, okay। So we have this array nums1 and nums2। so in nums1 we have 3, so इसका size let's say x और इसका size y। so x is 3, y is 4, okay। and let's say nums1 का जो partition है denoted by px, okay, and for nums2 partition py, okay। so we know that px plus py, if we have to do the binary search, okay, then px plus py should be equal to x plus y plus 1/2। so this will be 4 plus 3 plus 1, 8/2 equals 4, okay। now why px plus py is equal to x plus y plus 1/2? see, हमारे जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 7 है, विच इज ऑड। तो अगर हमें मीडियन निकालना होता है देन
वी डू x प्लस वाई प्लस 1/2. ओके, सो वी ऐड +1 जिससे कि लेफ्ट साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो देन दी राइट साइड. ओके, सो इफ आई से दिस इज द कंबाइंड एरे. ओके, सो जो हमारा 8 है वो मिडिल एलिमेंट है, सो ये मीडियन होगा हमारा. इट मीन्स कि पार्टीशन जो होगा वो यहाँ से होगा क्योंकि लेफ्ट में एक एलिमेंट हम ज़्यादा रखते हैं, एक ऑड एलिमेंट्स है. सो दिस इज योर px प्लस py फ्रॉम लेफ्ट. ओके, एंड दिस इज योर px प्लस py फ्रॉम राइट. ओके, तो हमें पार्टीशन ऐसे करने हैं कि लेफ्ट में 4 एलिमेंट्स आए और राइट में 3. अब ये डिसाइड कैसे होता है, हमारा जो एरे की साइज होती है हम उसको ऐड करके चेक करते हैं वेदर इट इज़ इवन और ऑड. ओके, एंड उससे हम लोग अपना पार्टीशन की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं. अब सपोज मैंने पार्टीशन किया यहाँ से, तो px में तो हो गया एक एलिमेंट. अब बचे कितने, टोटल 4 चाहिए, तो एक हो गया, नहीं बचे कितने, 3. तो py में मैंने पार्टीशन किया यहाँ पे, तो 7 9 10 आ गया. तो ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड का. ओके, और ये हो गया मेरा राइट साइड 3,8 एंड py में हो गया 11. अब हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे अपनी, राइट, कि मैक्स ऑफ लेफ्ट देन मैक्स ऑफ लेफ्ट y देन मिन ऑफ राइट x एंड मिन ऑफ राइट y. तो क्या 1 लेस है 11 से, है क्या 10 लेस है 3 से, नो, यानी दिस इज नॉट अ वैलिड पार्टीशन. सो व्हाट वी विल डू, अवर लो इनिशियली 0 था और हाई इज 3, राइट, क्योंकि हम छोटी एरे पे बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, लो को इंक्रीमेंट करेंगे विच इज पार्टीशन x. सो वी हैव टू राइट px प्लस 1. सो px 1 है इनिशियली, सो 1 + 1 2. ओके, सो अब जो px की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लो प्लस हाई बाई 2. सो लो इज 2, हाई इज 3, so 5/2 which is around 2.5 which is 2. okay, so अब हम पार्टीशन करेंगे, so let's do it. So this is nums 1 1 3 8 and nums 2 7 9 10 11. I'm taking blue color now. so यहाँ से पार्टीशन किया, so टोटल कितने होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स. so I will do in nums 2 here. okay, so if I write p of x, so 1 3 एंड p of y में 7 9. तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड की, और राइट साइड में p of x 8 एंड p of y 10 11. नाउ सेम कंडीशन चेक करनी होगी, मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ x, मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ y, min of right of x and min of right of y. So check 3 is less than 10, 9 less than equal to 8, no. So what we will do, again we will increase low. okay, so again partition is wrong, so फिर से हम लोग लो को राइट की ओर मूव करेंगे. ओके, सो लो इक्वल px plus 1. so currently px is 2, so this is 3. okay, now again we will find px, new px. okay, so l plus h by 2. so l is 3, h is 3/2 which is 3. okay, so let's do it here. so I am taking this color, nums of 1 1 3 8. okay, nums of 2 7 9 10 11. now doing the partition, so I am doing here partition. so 3 आ गए, तो कितने बचे, 1 बचा. so do it here. so px
has 138 on the left and py 7. सो ये लेफ्ट के हो गए और ये राइट के px में. अब इधर हमारे empty and py में 9, 10, 11. Okay, so now check the condition. Max of left of x, max of left of y, min of right of x and min of right of y. इनके बीच में कंडीशन चेक करनी है. So 8 is less than 9 and 7 is less than infinite. So जब हमारा एरे एम्प्टी होता है तो हम इन्फाइनाइट से चेक करते हैं कंडीशन को. ओके, सो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. So this is the valid partition. Okay, so this is how we move our low index towards right or high index towards left to find the valid partition. Okay, I hope logic clear हो गया होगा. If you have any doubt then please comment. And एक बार में ये समझ में नहीं आएगा. You have to say it at least 2 or 3 times to understand the logic if you are a beginner. Okay, now we will write the code for it. So let's move on to our code. Alright guys, so now let us code. So this is the platform for code on the code. Okay, so let's write the code. So we have given a class solution and a method find median sorted arrays. Okay, its return type is double and this method is public. Now it has two parameters nums1 and nums2 who are integer type, and we have used vector because vector size can be dynamically increase or decrease, okay, during runtime. So first we will check the size of nums1 and nums2. okay, क्योंकि हमें छोटी array पे बाइनरी सर्च यूज करना है इसलिए. So if nums1 dot size is greater than nums2 dot size, so what you have to do is return this function. So copy this find median sorted arrays, okay, and pass nums2 comma nums1. okay, सिंपल स्वैप कर देना है दोनों को. देन int x equals nums1 dot size. so nums1 का साइज x में स्टोर करना एंड int y equals nums2 dot size, okay, और nums2 का y में स्टोर कर रहे हैं साइज. then we have int low equals 0 comma high equals x. okay, now we have while condition while low less than equal to high. okay, then you have to do partition. so low क्या है हमारा start index है बाइनरी सर्च का और high end index है बाइनरी सर्च का. so low should always be less than high or it can be equal to high, but if low is greater than high it means there is no element remained. okay, so what we do is int partition x equals low plus high by 2. okay, and this should be in brackets. then int partition y equals x plus y plus 1 by 2. okay, माइनस पार्टीशन x. okay, so यहाँ से हमें x और y दोनों पार्टीशंस की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू चेक द एज केसेस ऑफ आवर array after partition. okay, so int max left x, okay, equals copy this partition x and paste it here. if this is equal 0, so यहाँ पे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करना है. ओके, सो मैक्स लेफ्ट एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकालना है. देन इसके बाद मैक्स लेफ्ट वाई निकालेंगे. ओके, देन मिन राइट एक्स एंड मिन राइट वाई सेम लाइन ऑफ कोड से निकालेंगे. सो सी हाउ वी डू इट. सो अगर पार्टीशन एक्स इक्वल्स 0 देन इंट अंडरस्कोर मिन. ओके, एल्स नम्स 1 पार्टीशन एक्स -1. सो इसको समझते हैं. अब हम लोग जैसे ये हमारा एरे है 1,3. ओके, सो इसमें अगर हम पार्टीशन करते हैं, सपोज हमने 1 से पहले पार्टीशन किया. ओके, तो क्या होगा, पार्टीशन एक्स इक्वल 0 वाली कंडीशन फुलफिल हुई. सो अगर ऐसा है तो इंट मिन हमको रिटर्न करेगा. ये इंट मिन क्या होता है, ये आपकी सबसे इंटीजर टैग की मिनिमम वैल्यू होती है. ओके, जिसकी वैल्यू ये होती है
-2147483648। ओके, सो अगर मान लीजिए मैंने 0 इंडेक्स पार्टीशन किया, मीन्स 1 से पहले अगर पार्टीशन मैं कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। सो अगर मैक्स ऑफ लेफ्ट एक्स में अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा, इट मीन्स एरे आउट ऑफ बाउंड एरर शो करेगा, इसलिए हमने इंट मीन यूज़ किया है। ओके, अब ये इंट मीन की कहाँ से आता है, ये हमारा सी लिमिट हेडर फाइल होती है, उसके थ्रू हमें मिलता है। तो वी यूज़ दिस जिससे कि हमारा एरे आउट ऑफ बाउंड एरर ना शो करे। ओके, सो अगर पार्टीशन एक्स इक्वल इक्वल 0 है तब तो इंट मीन रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमारा जो nums1 एरे है, ओके, वहाँ से हमको मैक्स ऑफ लेफ्ट एक्स की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। सपोज पार्टीशन एक्स की वैल्यू 2 होती तो partition x2 minus 1 means nums of 1 which is 3. So now copy this. Now this will be min of right x. Okay, so min of right x, if partition x equals x then int min की जगह max हो जाएगा ये, and nums 1 की जगह partition x हम रिटर्न करेंगे। now understand this min of right x. okay, जैसे हम लोग पार्टीशन करते हैं, सपोज 1 और 3 के बीच में पार्टीशन किया nums 1 में, तो इधर वाला हो जाएगा मैक्स ऑफ लेफ्ट एक्स 1 और 3 क्या हो जाएगा, मीन ऑफ राइट एक्स, राइट। तो मान लो हमने पार्टीशन किया और वो एक्स के बराबर है, ठीक है। एक्स इज योर हाई, और हाई क्या होता है, एंड इंडेक्स होता है एरे का। तो अगर मान लो एक्स 2 है तो 3 के बाद पार्टीशन होगा तो लेफ्ट में 1,3 चले जाएंगे, राइट में कोई वैल्यू नहीं बची, राइट। तो इन दैट केस इंट मैक्स हमको ये रिटर्न करेगा, क्योंकि अगर हम nums 1 में पार्टीशन एक्स की वैल्यू रखें विच इज़ 2, तो nums 1 ऑफ 2 एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स कितने हैं, 0 एंड 1, 2 इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इंट मैक्स को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये तो हो गया एरे nums 1 के लिए। सो कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इट हियर। अब एरे 2 के लिए विच इज nums 2, सेम चीज़, बस एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ वाई, then min of right of y, instead of partition x it will be partition y, same here, and instead of partition x minus 1 it will be partition y minus 1, and same here, and instead of x we have y here. So इसे भी समझ लेते हैं। see, this is your array, okay, sorry, this is your array nums2. now max of left of y, if partition is 0 means partition 2 के पहले हो रहा है, तो अगर ऐसा है तो लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, इन दैट केस वी रिटर्न इंट min. ओके, इंट min की एक वैल्यू है, सो वाई वी रिटर्न दिस, बिकॉज एरे आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, क्योंकि इसके इधर अगर हम पार्टीशन y की वैल्यू 0 रखें देन nums ऑफ 1 विल बी -1, सो निगेटिव इंडेक्स जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होती एरे में, राइट, इसलिए हम लोग इंट min रिटर्न कर रहे हैं। देन इज योर min ऑफ राइट ऑफ y, सो अगर पार्टीशन y इज इक्वल्स y विच इज nums 2 डॉट साइज, तो क्या है 1 है, सो अगर हम 2 के बाद पार्टीशन करेंगे तो राइट साइड में कोई वैल्यू नहीं है, ओके। इन दैट केस nums 1 में हम पार्टीशन y की अगर वैल्यू पास करें तो क्या हो जाएगा, nums 1 ऑफ 1, तो 1 इंडेक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 इंडेक्स है केवल, तो ये क्या हो जाएगा, एरे आउट ऑफ बाउंड, ये कंडीशन हो जाएगी। इन दैट केस वी रिटर्न इंट मैक्स, सो मैक्स की वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी, ओके। सो यहाँ से हमको एज केसेस हमने सेटल कर लिए हैं, सो you can comment here edge case handling. okay, now we are going to find the correct partition, so write found correct partition. So let's see the code now. Max of left of x less than equal to min of right of y, and max of left of y less than equal to min of right of x. So अगर ये condition fulfill होगी then we will get the valid partition x plus y percent 2 equals 0. Return max of left x comma max of left y. So इसमें से जो भी बड़ा होगा वो max, ओके, प्लस min of right of y comma min of right of x divided by 2.0, okay, else
return max of left of x comma max of left of y. Else if max of left of x is greater than mean of right of y, ओके, तो हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्टीशन x माइनस वन, एल्स लो इक्वल्स partition x plus 1, okay, and if there is any error then throw invalid argument, array not sorted, ओके। सो करेक्ट पार्टीशन के लिए ये वैलिड कंडीशन थी। सो ड्राई रन पे मैंने आपको दिखाया था, राइट। फिर हम क्या चेक करें, x प्लस वाई परसेंट टू मीन्स अगर इवन है, ओके, तो रिटर्न करेगा मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ x एंड मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ y में से जो मैक्स वैल्यू होगी, ओके, वो प्लस राइट साइड से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो, सो उसका एवरेज। सो इवन में जो मिडिल की टू वैल्यूज होती हैं उनका एवरेज ही मीडियन होता है, राइट। सो मीडियन की लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी वो हमको इस मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ x कॉमा मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ y से मिलेगी, और जो मीडियन के राइट की वैल्यू है वो इस मीन ऑफ राइट ऑफ y एंड मीन ऑफ राइट ऑफ x से मिलेगी। सो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा मीडियन होगा। और अगर ये सम अगर ऑड आता है तो हमको जो मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ x है और मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ y है उसमें से जो मैक्स होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। देन वी आर चेकिंग इफ मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ x अगर वो बड़ा है मीन ऑफ राइट ऑफ y से, ओके, तो हम हाई को एक स्टेप पीछे मूव करेंगे, अदरवाइज हम लोग को एक स्टेप आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग ड्राई रन मैंने आपको ये शो किया। सो दिस इज योर कंप्लीट कोड, नाउ लेट अस रन दिस। सो वी आर गेटिंग एन एरर ऑन लाइन नंबर 15, ओके। सो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे, तो नम्स 1 की जगह पे नम्स 2 करना होगा, ओके, क्योंकि y इज फॉर नम्स 2, नॉ रन इट अगेन, ऑलराइट। सो accepted case 1 and case 2 also, so we can submit this. So try this, and if you have any doubt in any concept then comment in the comment section. Also as I have said earlier कि एक बार में ये समझ में नहीं आएगा आपको, okay, so try to watch it 2 or 3 times, and if you have any doubt then please comment in the comment section. So मिलते हैं next tutorial में, till then enjoy the coding, and if you are coming first time on this channel then subscribe the channel. Till then goodbye and thank you.